Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 social science zero portions, right? With an ongoing topic, right? Our today's topic is natural vegetations, right? So as already we have discussed about our country India. Afterwards we have discussed about that what kind of seasons our country experience, right? Now we will discuss about the vegetations. Means which kind of plants that we can see in our country, right, or are there in our country, right, that will add the variety or we can say diversity to our country, right. So as a part or in a matter of seasons, right, we are experiencing monsoon, right, summer, winter, autumn, such seasons we are experiencing, right. So such seasons, right, add some diversity, right, or some undefined characteristics to our country, right. Now let me see on the basis of natural vegetations. We see a variety of plant life our surroundings, यानी हम हमारे आसपास काफी सारे different kinds of plants देख ही रहे हैं, right, कि जो different होते हैं और वो बहुत ही varieties में होते हैं. How nice it is to play in a field with green grasses. यानी जब हम गार्डन में जाते हैं, जब ग्रासेस होते हैं, हमें वहाँ पे खेलना बहुत ही अच्छा लगता है. So the reason why you prefer to go in a garden, right, every weekend or once in a month, right. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants etc, right. So जो छोटे छोटे यानी क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं, राइट, जिसे हम बुशेस बोलते हैं यानी झाड़ियाँ, राइट, एज वेल एज श्रब्स मीन्स कि जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, राइट, जैसे कैक्टस है, राइट, एज वेल एज फ्लावरिंग प्लांट यानी जिसके ऊपर रोज आते हैं, राइट, फ्लावर्स ग्रो होते हैं. नाउ बिसाइड्स इसके अलावा देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, सम विथ मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो और सम which stand with few leaves such as palm. यानी तरह तरह के इनके अलावा भी क्या देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं जो हाइटेड होते हैं, जो बहुत ही हाइट में नहीं भी होते हैं, राइट. कुछ के ऊपर जो यानी जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ के ऊपर लीव्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी उनकी क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, राइट. सो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetations. यानी जिनको ग्रो होने में, बड़े होने में, राइट, और वो खुद ही ग्रो हो जाते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफियर के बिना. So such vegetation is called natural vegetation. So here you can be asked a question that what do you mean by natural vegetations means? You can see, right, the grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help of any human beings, right, are called natural. यहाँ से लेके यहाँ तक, right, you can underline, right, it can be asked the questions in the exam too and it is also the knowledgeable part, right. Do you wonder how this differ from each other, right. आपको पता है कि ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, राइट. Different types of natural vegetations are dependent on different climatic conditions among which the amount of rainfall is very important. यानी यहाँ पे हमने देखा है कि shrubs हैं, राइट, प्लांट्स हैं, राइट, एज वेल एज ग्रास है, ट्रीज है, राइट. तो ये सारे के सारे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अमाउंट में देखे जाते हैं या फिर पर्टिकुलर एक रीजन में या तो बहुत ही घने क्या देखे जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या नहीं पाए जाते हैं, यानी सिर्फ ग्रास पाई जाती है, या फिर वहाँ पे श्रब्स जैसे कि कैक्टस है वही पाए जाते हैं, राइट. और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ग्रीनरीज देखने को ही मिलती नहीं है. तो ये सारा का सारा डिपेंड है किसके ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, राइट, कि जहाँ पे पर्टिकुलर मॉइस्चर ज़्यादा होगा देन वहाँ पे ग्रीनरीज अच्छी होगी, जहाँ पे मॉइस्चर एकदम ही कम होगा वहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होगी. अगर मॉडरेट है यानी बहुत मॉइस्चर भी नहीं है, बहुत यानी मीन्स मॉडरेट यानी कम ज़्यादा नहीं है. सो ये कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, एक
इक्वल अमाउंट में ग्रास एवरीथिंग विल ग्रो, राइट. सो जिसके चलते यानी ये क्लाइमेटिक कंडीशन में पर्टिकुलर ग्रीनरीज को ग्रो होने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेनफॉल उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. ड्यू टू वेरी क्लाइमेटिक कंडीशंस India has a wide range of natural vegetation. As I already have told about it in the sense of season or different seasons, right? Seasons add variety to our country, right? Not only right in the different characteristics, also it affects to the natural vegetations too, right? So why are forests necessary, right? But apart from that, right, when we see this picture, right, on the basis of the previous paragraph, right, here you can see, right, a tree is being given, right, that can be that can have a maximum height of 60 meter, right. So the layer is also mentioned that emergent layer, right, canopy, as well as young trees, shrubs layers, यानी जो छोटे छोटे लेयर होते हैं that is known as shrub layer, ground layer that you are knowing, right, the sprouting roots, as well as right you can see the shrubs are of generally 1.5 meters, like young trees of 5 meters to 20 meters. After that 20 meters to 40 meters trees are called canopy, and 40 meters to 60 meters that is emergent layer, right. Now here the tropical rainforest यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, राइट, वो वहाँ पे क्या होते हैं, नेचुरली काफ़ी सारी ग्रीनरीज देखने को मिलते हैं, ठीक ट्रीज ग्रो होते हैं, दैट इज नोन एज फिगर 8.1, दैट इज ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो फॉरेस्ट. नाउ व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, that can be asked in the examination, that the forest हमारे लिए क्यों जरूरी है, right? It can be asked as a give reason, it can be asked as a detailed question. Forests are very useful for us, right? Forest हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्यों? They perform various functions. वो हमारे लिए काफी different work करते हैं. क्या करते हैं? Number 1, plant release oxygen that will breathe and absorb carbon dioxide. यानी जितने घने जंगल होंगे, फॉरेस्ट होंगे, अब पॉपुलेशन भले ही बढ़ती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं देन ऑक्सीजन इनहेल, राइट, जब हम एक्सहेल करते हैं यानी जब हम ब्रेथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही हमारे लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम कॉजेस क्रिएट करने वाला है. देन कि अगर वो हवा में रहेगा हम ब्रेथ करेंगे, क्योंकि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दें, पॉसिबिलिटी है ऑफ चांसेस दैट द डिजीज विल अराइज, राइट. काफ़ी सारे डिजीज, और उसके चलते अभी जो डिजीज फैल रही है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सारा पोर्शन वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जितने घने जंगल है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, राइट. द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड सॉइल. अब जो रूट्स हैं, राइट, जो प्लांट्स के वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करते हैं यानी पकड़ के रखते हैं, जिसके चलते दे कैन नॉट दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, राइट. अब जस्ट सोचो, राइट, कि एक फ्लैट लैंड है, वहाँ पे अगर आप चाहे वो ढलान वाला है, नहीं ढलान वाला है, कुछ भी हो, राइट, तो वो जो यानी क्या है, अगर आप वहाँ पे आप पानी क्या करते हो, डालते हो, तो होगा क्या, वो पूरा का पूरा पानी वहाँ पे जितने भी मिनरल्स है या फिर जो भी है उसको इरोज करते हुए आगे ले जाएगा. लेकिन अब सोचो उल्टा करके, वहाँ पे ट्रीज ग्रो कर दिए गए हैं, अब वही एक्टिविटी आप कर रहे हो, वाटर को क्या कर रहे हो, यानी डाल रहे हो. अब होगा क्या, काफ़ी सारा पोर्शन जो पानी का है वो क्या होगा, देखिए एक तो ये जो ट्रीज है उसके रूट उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट. आफ्टर दैट कुछ पानी फ्लोट होगा, जिसके चलते, राइट, जो इरोजन है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर कंट्रोल हो जाएगा, राइट. देन एक्सप्लेन हियर, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फर्नीचर, यानी हमें क्या देते हैं, वुड देते हैं, जिससे फर्नीचर क्रिएट होता है, जिससे हम हमारे घर को क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लगा सकते हैं, अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं. फ्यूल वुड गाँव में ज़्यादातर खाना पकाने के लिए वुड, नाउअडेज मैरेजेस चल रहे हैं, राइट. मैरेजेस में भी यानी जो फ्यूल यानी एज अ फ्यूल पकाने के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, वुड ही यूज होता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम इट नाउअडेज काफ़ी सारे बेकरी आइटम
आइटम्स दैट यू आर ईटिंग, राइट, तो वो पर्टिकुलर बेक जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, फायरवुड से ही किया जाता है, राइट, टू बेक बेकरी आइटम्स एज वेल एज टू बेक ब्रेड्स एंड एटसेट्रा थिंग्स। नाउ फोडर यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए खाने पीने की चीजें, मेडिसिनल और मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, और काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनसे आप यानी अपनी जो डिजीज होती है उसको क्या कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस दैट अगर आपको यानी सर्दी खांसी है थोड़ी बहुत, राइट, देन योर मदर और ग्रैंडमदर ऑफन टोल्ड, राइट, टू हैव अ ज्यूस और हैव अ ड्रॉप्स ऑफ सम tulsi, right, adrusi, right, so such plants been given after apart from this, right, अगर हम हल्के फीवर से क्या हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, देन ऐसा कहा जाता है दैट जो नीम के जो लीव्स होते हैं उससे पानी क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उससे नहलाया जाता है, देन वो एक तरीके से फीवर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। सो सच लेस हनी, गम एक्सेट्रा, लेस जनरली यूज होता है, राइट, चीज़ों को सील करने के लिए ज़्यादातर, एंड एज अ कह सकते हैं, राइट, कैंडल के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। नाउ हनी, राइट, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, एंड गम, राइट। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट में से हमें मिलती है। सो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट क्यों हमारे लिए जरूरी है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, कि इफ यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, देन यू कैन राइट होल पैराग्राफ एज एन आंसर। नाउ सो फॉरेस्ट की जब बात हो ही रही है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वाइल्ड लाइफ की बात ना हो, राइट। अब जो वाइल्ड लाइफ है कि जब हम सोचते भी हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल के बारे में, देन लिटरली हमारा जो इमेजिनेशन जाएगा कि वो पर्टिकुलर एनिमल है वो कहाँ पे रह रहा है, फॉरेस्ट में ही रह रहा है। सो द रीजन व्हाई वी कैन से इट्स एन नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मींस अ प्लेस वेयर पर्टिकुलर मेंशन्ड थिंग्स आर लिविंग इन, राइट। जैसे कि हम हमारी बात करें ह्यूमन बीइंग्स, देन हम ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हमें हमारी जो लाइवलीहुड अर्निंग्स है वो इजीली मिल जाए। सो वाइल्ड लाइफ के लिए उनकी जो चीजें हैं वो दैट आइदर कार्निवर्स होते हैं, ऑम्निवर्स होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से सारी चीजें उन्हें कहाँ पे मिलती है, फॉरेस्ट में मिलती है। देन इट्स एन नेचुरल हैबिटेट फॉर देम। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees, right? So ये जो नेचुरल यानी जो फॉरेस्ट को आज क्या किया जा रहा है, कटिंग डाउन किया जाए, काफी यानी कल्टीवेट किया। क्यों कल्टीवेट किया जाए? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग, यानी वहाँ पे या तो कंस्ट्रक्शंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, या फिर मेजर जो प्रोग्राम्स है, राइट, आइदर कंस्ट्रक्शंस ऑफ bridges as well as roads, as well as somehow the forest is connected or on the bank of river where the dam is being constructed, right? So ये सारी की सारी जगह या फिर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाया जा रहा है, प्लेसेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे ये सारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। वैसे भी ट्रीज में से काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही है जिसके यूज के लिए उसको क्या किया जा रहा है, कटिंग डाउन किया जा रहा है, और वो बहुत ही एक्सटेंड यानी वो बहुत ही बड़े लेवल पे आज बढ़ गया है। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो जो पुराने जो लगे हुए उनकी उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट, कि कोई उसको क्या ना करे, बिना वजह ही उसको कट ना करे। एज वेल एज हमें लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि क्यों ये जो ट्रीज है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है, राइट। सो आपने देखा होगा कि प्री मॉनसून प्लान जब सिटीज में क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो जितने सिटीज में जो अलॉन्ग साइड रोड जितने भी ट्रीज होते हैं ज्यादातर उसको क्या किया जाता है, उनकी ब्रांचेस को, बड़ी बड़ी ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है। जस्ट व्हाई इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, यानी उसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर बहुत बारिश होती है, विंड बहुत जोर से फ्लोट होती है, यानी होती है तूफान जैसा थोड़ा बहुत सिचुएशन क्रिएट होता है, तो अगर ट्रीज गिर जाएंगे तो उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो लाइटनिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो भी टूट के बिखर सकते हैं, जिसके चलते अगर रात में होते हैं या फिर दिन में होते हैं, अगर ऐसा होता है देन
जो लाइव वायर्स है वो किसी के ऊपर गिर जाएंगे तो बहुत बड़ी जानहानि होने का अंदेशा है, जिसके चलते भी वो उसको प्री मॉनसून प्लान के अंदर उसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। नाउ we can have special programs like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. Nowadays काफी सारे celebrities, actresses, actors, sports persons, right, and leaders of different regions, right, वो क्या करते हैं, ये जो green, right, go green, like you may have heard about it, that उसका एक क्या चला रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे कि वन महोत्सव में क्या होता है, देखिए क्यों फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वन मीन्स फॉरेस्ट, राइट, महोत्सव यानी उसके रिगार्डिंग सेलिब्रेशन होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम को क्या किया जाता है, लोगों के लिए, लोगों को बताया जाता है। Now, so you can see this right picture in your textbook too, right? Now, so different kinds of things that we get from the forest, right, are mentioned here, as well as we can say the benefits or advantages of the forest is being mentioned here, right? So whatever the things that we collect from forests, right, all such things, right, were given here, right? So ये सारी की सारी चीजें एक तरफ यानी बतलाई गई है कि ऑक्सीजन अपार्ट फ्रॉम दिस, that whatever the things that we collect from forest, right, on the basis of this, right, what kind of advantages we have, या फिर वहाँ पर वो सारी चीजें ली जाती है तो उससे क्या क्या चीज प्रोड्यूस होती है, वो सारा का सारा यहाँ पे बतलाया गया है, that you can observe and easily understand by yourself, right? So here Leela's parents, one of the most nicest story you can say, right? Leela's parents planted a sapling of neem to celebrate her birth. यानी क्या हुआ था, एक मतलब लीला की बर्थडे आई, राइट, या फिर उसका जब बर्थ हुआ तो उस पर्टिकुलर बर्थ के दिन यानी उसके पेरेंट्स ने क्या लिया, एक शपथ ली या फिर ओथ ली कि वो हर साल उसकी जब उसका भी जब बर्थडे आएगा तो क्या करेंगे, एक प्लांट को वो ग्रो करेंगे, सेलिब्रेट हर बर्थ, वन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वाज प्लांटेड, यानी हर बर्थडे को एक छोटा प्लांट वो ग्रो करेंगे। इट वाज वाटर रेगुलरली एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवर हीट, यानी उसे हर रोज पानी देना और वो जो बहुत ज्यादा अगर हीट होती है तो प्लांट क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, तो उससे भी उनकी क्या थी, प्रोटेक्ट किया कोल्ड एज वेल एज एनिमल्स, चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट, यानी चिल्ड्रन से भी बचाया जबकि वो उसको क्या ना करे, डैमेज ना करे। व्हेन लीला वाज 21 ब्यूटीफुल ट्रीज स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस, यानी जब लीला कितनी हुई, 20 साल की हुई, तब 21 जो क्या थे ट्रीज थे वो उसके पूरे हाउस के आजू बाजू यानी सराउंडिंग में थे। बर्ड्स built their nest on them, flowers blew, butterflies fluttered around them, children enjoyed their fruits, swerved on their branches and played in their city, यानी ऑलमोस्ट वहाँ पे क्या बना दिया था, गार्डन बना दिया था। अब उन्हें किसी दूसरी जगह पे गार्डन जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि जब वो 20 साल की हुई तब वहीं पे इतने ज्यादा यानी 21 ट्रीज वहाँ पे थे, राइट, जिसके चलते वहाँ पे फ्रूट्स भी ग्रो हो गए, यानी लग गए थे, रिपन हो गए थे, एज वेल एज उनकी जो ब्रांचेस है उसके साथ जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, उसके साथ हैंगिंग करके यानी स्वॉक कर रहे हैं, यानी झूल रहे हैं, राइट, एज वेल एज काफी सारे बटरफ्लाइज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स आर सिंगिंग, तो ये इतना क्या लग रहा है, सुहाना लग रहा है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ वन ट्री, राइट, और कह सकते हैं कि अगर एक फैमिली इतनी ऐसा कोई प्रोग्राम करती है या फिर ऐसी कोई चीज करती है और इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, तो सोचो कि हर एक इसके प्रति क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है या इसको सीरियसली लेता है, तो कितना ज्यादा चीज हमारे एनवायरनमेंट में आ सकता है और काफी सारी अच्छी चीजें हमें मिल सकती है। नाउ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, यानी जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी भी होती है, जैसे कि स्नेक्स है, राइट, कैमेलियंस है, लाइक दैट, एम्फिबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड
forms which dwells in the forest, यानी ये सारी चीजें जो फॉरेस्ट में घूमती रहती है, राइट। सो ये वैरायटी कहाँ पे देखने को मिलती है? हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, राइट। दैट विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, एंड यू कैन सी द टाइगर, राइट, इज आवर नेशनल एनिमल। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो हमारी कंट्री में ये टाइगर काफी डिफरेंट प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। नंबर 1, गिर फॉरेस्ट दैट इज इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, राइट। एंड यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हिच इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, एंड इट इज अ रेन forest. Elephants and 100 one-horned rhinoceros, right, यानी जिसको हम one-horned rhinoceros means गेंडा के नाम से भी जानते हैं, right, roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka, right. Kerala और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं in the southmost portion. Now camels and wild asses are found in the Great Indian Desert. So ये पूरा का पूरा particular animals कहाँ पे पाए जाते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है। That read it very carefully and understand, right, on the basis of your knowledge is concerned. And the run of Kutch respectively. Wild goats, snow leopards, bears, etc. are found in Himalayan region. यानी just imagine, यानी जो यानी ऐसे एनिमल्स है कि जिनकी यानी बॉडी के ऊपर ज्यादा फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं। स्नो लियोपार्ड्स, गॉट्स, वाइल्ड गॉट्स एंड बियर्स के हेड्स या फिर फर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो कोल्ड प्लेसेस पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट, या फिर पोलर रीजन पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, राइट, आप देखोगे लायन, टाइगर्स या एलिफेंट्स एक मॉडरेट टेम्परेचर में वो देखने को मिलते हैं। Besides this, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetah, etc. Cheetah, right? Now, India is equally rich in bird life. यानी पहले हमने बात की एनिमल्स की, अब हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, राइट। सो जैसे हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन है? टाइगर है। वैसे ही द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, दैट यू ऑलरेडी know about. Other common birds are parrots, pigeons, मैना, geese, bulbul and doves, right. There are several bird sanctuaries and bird sanctuary में जहाँ पे birds को लाया जाता है, अभयारण्य जैसे हम कहते हैं, लाया जाता है, वहाँ पे उनके खाने पीने सब चीज़ों का इंतजाम किया जाता है। अगर वो कोई यानी बीमार होते, इलनेस आती है, तो वहीं पे डॉक्टर भी होते हैं जो उनका इलाज करते हैं, एज वेल एज उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जाता है, राइट। Sanctuaries which have been created to give birds their natural habitats. This provide the birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? तो आपके एरिया में कौन से 5 birds पाए जाते हैं? That you can give the answer. Crow, sparrow, etc. etc. You can give peacock, parrot, pigeons, right? So there are several hundreds of species of snakes found in India. And reptiles की बात करें तो करीब यानी hundreds of species जो snakes है वो पाए जाते हैं, जिनमें से ऑलरेडी यू हैव लर्न इन 5th स्टैंडर्ड, राइट, स्नेक्स एंड स्नेक चार्मर्स, राइट, ऑफ स्टोरी ऑफ स्नेक चार्मर्स, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट द 5 टाइप्स ऑफ poisonous reptiles or poisonous snakes that we found in our country. So वहाँ पे हमने ऑलरेडी बात की है कोबराज एंड क्रेट्स. So are important among them. Due to the cutting of forests and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly, right? So क्या ज़्यादातर यानी जो फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जाए। सो द रीजन में जो पहले काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो नाउअडेज क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, मीन्स अब कम हो रहे हैं। और कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो अब देखने को ही मिलते नहीं हैं। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी यानी वहाँ पे रही ही नहीं, जैसे कि वन राइनोसरस जो लास्ट था, राइट, शायद वो अफ्रीका में था, राइट, वो अभी रिसेंटली यानी 1-1.5 साल पहले या फिर अभी रिसेंटली वो लास्ट उसकी क्या हो गई है, डेट हो गई है, राइट। सो in order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up, right. यानी इन सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इनफ क्या क्रिएट किए, सेंचुरीज करके उनको नेशनल हैबिटेट मिलता है, एज वेल एज बायोस्फीयर्स को क्या किया है, रिवर के जब
जहाँ पे उनकी जो कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन स्थापित हो, एज वेल एज द गवर्नमेंट the pictures of different kind of animal that you can see here. Now the government has also started Project Tiger and the Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife sanctuaries of India and locate them on map, right? So there are there are very और काफ़ी सारी यानी सेंचुरीज है, राइट, जो हमारी कंट्री में लोकेटेड एज वेल एज गुजरात भी काफ़ी सारी है, राइट. So you can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins and feathers. Every year we observe wildlife week in first week of October. Underline this, right? So when it will, right, celebrate the wildlife week, then it is in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of animal kingdom. यानी यहाँ पे एक तरीके से आपको मैसेज दिया गया है that you can be a person or you can be a one, right, that can create or that can convey the message regarding how anyone have to or anyone has to protect or conserve the forest as well as forest items, right, in which plants are also included as well as the animals are also include. तो किस तरीके से आप different प्रोडक्ट्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी यानी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या किया गया है, रन किया ही है, जिसके चलते अगर कोई टाइगर को हंट करता है, एलिफेंट को हंट करता है, तो उसको उनकी क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी. और आप भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, उनको फॉरेस्ट के जो फायदे वो सुना सकते हो, एज वेल एज ऑलरेडी यानी वर्ल्ड वाइड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्या मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाए, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस बताया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एज वेल एज लीडर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने वो एम्बेसडर बनाए हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. सो हियर लार्ज स्केल कोचिंग LS in simple rivers, right, will center wildlife there finally peace and nature. So ये सारे के सारे हैं जो प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एज वेल एज जो यानी अवेयरनेस प्रोग्रामर्स जो यानी एक तरीके से यानी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये किया है, राइट. उनका जो भी यानी इश्यूज रहा है उसको जब पेपर में क्या हुआ है, छपा है, राइट, प्रिंट हुआ है, तो वो यहाँ पे बताया गया है. एज वेल एज आई वांट टू लेट यू नो वन थिंग that अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था that you may aware of the KBC, right, कौन बनेगा करोड़पति शो, where one person, right, is from महाराष्ट्र, यानी वो लिटरली यानी उसको जंगल मैन कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अकेले क्या किया है, जंगल को बचाने का काम किया है, राइट. एज वेल एज काफ़ी सारी कैलिफोर्निया या फिर वहीं कहीं की एक क्या है, एक एजेड पर्सन है, राइट, उन्होंने क्या किया है दैट कि जब उनकी यानी एनिवर्सरी या फिर उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई, तो उनकी याद में हर साल, राइट, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, या फिर बहुत सालों से, राइट, हर साल एक प्लांट, जिसके चलते उन्होंने खुद ने क्या किया है, एक पूरा फॉरेस्ट क्रिएट किया है. एज वेल एज हमारी कंट्री की एक एजेड लेडी है जिन्होंने अकेले यानी एक पूरा फॉरेस्ट यानी करीब समथिंग in amount of thousands trees she has grown. और ऐसे काफ़ी सारे हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस, राइट. थैंक यू.